Bismillahirrahmanirrahim. I will try to use both languages. Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Almighty Allah, the most merciful and beneficent. Hope my voice is audible to you all and find you all in healthy and good health. I am extremely sorry for previous result. If you have any grievance or any other reservation, that keep it with yourself or move application to worthy dean. So that was the result. In this subject, we have two tutors, I and Sir Mubashir. In the property law, we have four subjects to cover. Number one, Land Acquisition Act. Number two, Transfer of Property Act. Number three, Limitation Act. And number four, Registration Act. So as per the schedule, I have a three classes. So I will discuss Land Acquisition Act. Thereafter, we will discuss Registration Act. And if I got some time, then we will discuss Limitation Act in shortly. Sir Mubashir will teach the Transfer of Property Act. Okay, limitation fourth year mein, okay. Then we have Registration Act and Land Acquisition Act. I will try to cover Land Acquisition Act before your midterms so that entire act of the Land Acquisition Act will be your syllabus for the midterm. I repeat one more thing. I will be with you till the online classes. When university orders to resume the classes at the campus, then you will find another teacher instead of me. I cannot resume at the campus. Okay. Now we are going to discuss about the Land Acquisition Act 1894. First of all, we have to know about the purpose of this act. Why this act was brought and when this act was brought and what was the purpose and whether the act fulfill the requirements or the intention of the legislature. Welcome Basit, kindly mark attendance of the present students. Yes, sir. Thank you. The land acquisition means the land which is in the possession of a private person and that is required by government. The land which is in the possession of private person and that land is required by government for the two purposes. Right? Number one, for the public purpose, and number two, for the companies. I am repeating, Land Acquisition Act was brought with intention that government may acquire, government may take, government may possess the land from the private persons for two purposes. Number one, public purpose, and number two, for the companies. Right? This act was passed by the Legislative Authority on 2nd February 1894 and the same came into the force on the first day of March 1894.
2 फरवरी 1894 में लेजिस्लेशन ने इस एक्ट को पास किया और 1 मार्च 1894 में इस एक्ट की अमल दरामद स्टार्ट हुई, इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुई। इस एक्ट को लाने का मकसद ये था कि जो भी प्राइवेट पर्सन्स के लैंडेड प्रॉपर्टी है उनको गवर्नमेंट एक्वायर करके किसके हवाले करेगी? गवर्नमेंट एक्वायर करके या तो पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगी या किसी कंपनी के लिए इस्तेमाल करेगी। रिमेंबर, यस, लेजिस्लेचर मीन्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने ये कानून, आपको पता है कि यू नो वेरी वेल दैट हाउ अ बिल पास फ्रॉम द legislative body. If it's a state level or federal legislation, then the same will be passed from the both houses, and thereafter the consent will be given by the President of Pakistan. So the consent was given on 2nd February 2 फरवरी 1894 1894 में, but this act came into the force on 1st day of March 1894, means after expiry of 1 month। 2 फरवरी को बिल पास हुआ और 1 मार्च से इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट स्टार्ट हुई, राइट। This act has been divided into the 8 parts and that consist of total 55 sections. Right? I repeat, the Land Acquisition Act 1894 divided into 8 parts and it has 55 sections. As you know, in every act there is preliminary part or chapter. In that portion, most of all, we have some terminologies which has been defined by the legislative authority. So we are going to start from the preamble. The preamble is that an act to amend the law for the acquisition of land for public purpose and for companies. Remember one thing, this act only and only for the acquisition of land for the public purpose or for the companies. So what is the aim of this act other than this? That is, it expedient to amend the laws for the acquisition of land needed for the public purpose or companies and for determining the amount of compensation to be made on the account of such acquisition. Remember, if government acquires your land, the government is duty bound to compensate for the acquisition. कि अगर गवर्नमेंट ने आपकी जमीन अक्वायर की है तो आपको कंपनसेट करेगी। अब कंपनसेट हाउ द कोर्ट विल, हाउ द गवर्नमेंट विल डिटरमिन द अमाउंट फॉर द कंपनसेशन? There are two main purposes of the act. Number one, yes, I am repeating. Number one, the land will be acquired by the government for the public purpose and for the companies. या तो पब्लिक पर्पस के लिए लैंड एक्वायर की जाएगी या फिर कंपनीज के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए। अब जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट मेरी लैंड को एक्वायर कर रही है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल पे द कंपनसेशन फॉर सच एक्विजिशन। तो अब गवर्नमेंट मुझे फॉर एग्जांपल कह रही है कि भाई आप 10,000 रुपये ले ले इस प्रॉपर्टी के, एंड माई क्लेम इज दैट
कि मेरी प्रॉपर्टी 10,000 की नहीं है, ये 50,000 की है. So who will determine my case? Then I will approach the court under the provisions of the said act, means the Land Acquisition Act, and I will approach the court that you have to determine the amount for the compensation of my acquired land. For example, the land was acquired for the public purpose. मुझे ये कहा गया कि जनाब आपकी जो लैंड है वो हम पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल बना रहे हैं या हम एक स्कूल बना रहे हैं वगैरह वगैरह, बट द सेम वाज यूज्ड बाय अ कंपनी. द सेम वाज यूज्ड बाय द कंपनी. तो फिर मैं क्या करूंगा? आई विल क्लेम मोर कंपनसेशन, बिकॉज पब्लिक पर्पस के लिए जो कंपनसेशन का रेशियो है वो कम है एज कंपेयर टू द कंपनी. वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट in our coming lectures. Right? Am I audible to you all? अब आ रही है? Am I audible? बासित, समी, आवाज आ रही है? आ रही है. Okay. So thereafter, now remember one thing, we have discussed about the land and acquisition, public purpose companies and compensation, right? Okay. So now we are going to define the some terminologies, that what does that means. Now we have first of all the term land. The expression land include the benefits arises out of land. Remember, वैसे तो हम land सिर्फ जमीन को ही कंसीडर करेंगे, राइट? वैसे तो जमीन से मुराद ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और उसके साथ अगर कोई चीज कनेक्टेड हो. यस बेटा, ये जो एदा तारिक आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कंपनसेशन के लिए क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू देखेंगे या कुछ और जो हमारे पास होगा, दैट विल बी कवर्ड अंडर, लेट मी check the exact provision. Yes, 25, section 25, 24, 23, right? In 23, 24, 25, we will discuss each and everything, that how we will determine the amount. I have heard technologies is repeat cutting. आवाज ही नहीं आ रही सर, cutting. सर आपकी वॉइस कट के आ रही है. I have not heard, not audible. Okay. Okay, now अब आवाज आ रही है. So your voice is not clear. Am I audible to you all now? Okay. I have said that the compensation will be determined while considering the provisions of section 23, 24 and 25. We will discuss these things later on. Right? Voice is not clear. Quicker enable to listen. Your voice is not clear. Section number 23
24 and 25, सेक्शन 22, सॉरी 23, 24 और 25। देखिए, पब्लिक पर्पस और कंपनीज, ये दो चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट acquire land for the public purpose, government acquires the land for the public purpose. Public purpose means where the benefit of the public at large involved. For example, government intend to build a hospital, a school, a police station for the safety purpose. आमिर, बासित, आवाज नहीं आ रही क्या? सर असां वटि त अचे पई। ओए, हिते इनबॉक्स में वॾो झेड़ो लॻो पियो आहे, आवाज़ कोन थो अचे। Abdullah, are you getting my voice now? सर कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही। जी सर, आवाज कटजी तो नहीं बार बार। हाँ सर, आवाज कटजी पई सर, रखी अचे थी, रखी नथी अचे सर। अलाए छा इशू है बाबा। खैर, ये मुझे याद आ रहा है, आई एम रिमेम्बरिंग दैट दिस इशू वाज with us in starting of our classes. So after 1 or 2 days, the same will be fixed, inshallah. So today we are going to discuss few expressions or terminologies. Example के बाद नहीं आया समझ बेटा। Okay. There are two purposes for the acquisition of land. Number one, government acquire your land for the public purpose. अब public purpose में क्या क्या आ रहा है? Where the public at large interested. अब एक hospital बन रही है, तो definitely government at large will be interested in that hospital, कि भाई hospital बने। मगर हुआ यूं कि हमें कहा गया कि हम यहाँ पे hospital बनाएंगे, मगर यहाँ पे hospital नहीं बनाया गया और वो किसी कंपनी को दे दी गई कि भाई आप यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स चलाएं, आप यहाँ पे अपनी बेनिफिट हासिल करें। देन वी विल गो टू द कोर्ट एंड विल आर्ग्यू दैट कि यहाँ पे हमें कहा गया कि हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल बनाएंगे, मगर इन्होंने इस कंपनी के हवाले कर दी है और मुझे जो कंपनसेशन हुआ है, मुझे जो अमाउंट मिली है, मुझे जो पैसे मिले हैं, वो पब्लिक पर्पस के मिले हैं और यहाँ पे कंपनी को हायर किया गया है। वॉइस नहीं आ रही? सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। या पता नहीं आज क्या इशू चल रहा है आवाज के साथ। बासित सर छा मसलो थी सके तो बाबा आवाज में? सर नेटवर्क जो थी सके तो ॿियो हाणे छा हूंदो? खबर है। आवाज पे कटजी अचे तो? हेलो जी जी सर। तव्हां वटि बि कटजी अचे तो? सर असां वटि त सही पियो अचे, पर थोरो ईअं न जीअं गिरनाट ईंदी आहे कीअं अचे थो, मतिलबु वॉल्यूम जो अॻियां घटि थिए थो, वधि थिए थो, घटि थिए थो, बाक़ी कटिजी नथो अचे। कहिड़ो थींदो बि हुजे। सर कटजी अचे थो आवाज़ सर। सर असां वटि बि कटजी अचे थो, बासित जो बि अवां जो बि। जॾहिं बासित जो बि कटजी अचे थो, मुंहिंजो बि कटजी अचे थो, पोइ
छा में इशू थी मे बी से सां नेटवर्क इशू आया तव्हां वटि। वो मूं वटि सही आहे, मूं वटि बासित जो बि आवाज़ सही अचे पियो, समी जो आवाज़ भी सही अचे पियो, तव्हां जो आवाज़ भी सही अचे थो। सर बस जो आवाज़ सही थो अचे, तव्हांजो कटिजे थो सर। अञा बि कटिजे थो आवाज़? हाणे सही आहे अचे थोड़ा, थो, हाणे त अचे थो न। हाणे सही आहे बिल्कुल। अभी सही है, ओके। अच्छा, we were discussing that the land will be acquired by the government for two purposes. Number one, for the public purpose. Another is for the companies. अगर for example during define कट के आ रही है, अगर पब्लिक पर्पस के लिए जमीन अक्वायर की गई है तो हमें जो कंपनसेशन मिलेगी वो थोड़ी कम मिलेंगी, बिकॉज द गवर्नमेंट द पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दैट मैटर। और अगर कोई कंपनी हायर कर रही है, कंपनी को हमारी जमीन चाहिए और गवर्नमेंट अक्वायर करके एक कंपनी को हमारी जमीन दे रही है, देन वी विल क्लेम मोर कंपनसेशन, बिकॉज वहां पे कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए, अपनी बचत करने के लिए ये सारे लैंड अक्वायर करने के प्रोसेस से गुजर रही है। अगर हमारी प्रॉपर्टी को अक्वायर किया गया कि भाई हम आपकी प्रॉपर्टी को इस वजह से अक्वायर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, दैट मीन्स फॉर द पब्लिक पर्पस। और उसके बाद आवाज क्लियर नहीं आ रही? छा मसलो थी सके तो? सॉरी सर, डिवाइस नहीं आ रही। नेटवर्क इशू कैसे हो सकता है? आई थिंक कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स जो है प्रीवियस सेमेस्टर में भी इसी मोबाइल से, इसी कनेक्टिविटी से ली है। सर एक लफ्ज आ रहा है, वॉइस इज चॉपिंग बेडली, नॉट ऑडिबल, फिर बीच में आ रही है। क्या किया जा सकता है? ये पर्पस समझ में आ गया? एनीबॉडी जो इसके पर्पस को डिफाइन करे? समी, समी, रोल नंबर 15, समी। जी सर। What you have understand, please elaborate the same. जी जी Sami, please start. समी साईं खे जी ॿुधाया सर। बसि। छा छा ॿुधाया सर के सर? जी सर, आवाज़ तव्हां सही न आहे पहिरियां सर। बाबा जेको कुछ तव्हांखे सम्झ में आयो आहे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट? लैंड एक्विजिशन छाजे करे आयो, इन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं अचनि थियूं, ये सॼियूं ॻाल्हियूं तव्हां थोरो एक्सप्लेन कजो। सर इन एक्ट जो मेन सर ऑब्जेक्ट इहो आहे त आइदर इन उर्दू और इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इहो आहे सर, प्लीज आइदर इन। कंपनी जेके बि नीड हूंदी गवर्नमेंट के कहिड़े बि हिसाब सां कयो बि समी, पब्लिक
पब्लिक पर्पस लाइ या समी अहिड़ो को समी फैक्ट्रीज़ लाइ या स्कूल्स अब्दुल लाइ या समी फिशरी डिपार्टमेंट लाइ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लाइ जेके अब्दुल गवर्नमेंट नीड हूंदी त उहो कंहिं बि माण्हू खां अक्वायर करे सघे थी बाय लीगल्स थ्रू। त फॉर एग्जांपल सां अहिड़ो को रोड ठहे थो पब्लिक पर्पस लाइ ऐं लैंड कंहिं माण्हू जी आहे, उहा असां उन खां वरिती वञे थी, सर उन ते पोइ कब्ज़ो करे थो, उहो कब्ज़ो जेको लीगल करार ॾिनो वेंदो उहो लैंड एक्वाइज़ेशन थ्रू। इहो फॉर रोड ठहे थो फॉर पब्लिक पर्पस लाइ, और उहा उन खां लैंड वरिती वेंदी ऐं उनखे सम अमाउंट पे कयो वेंदो। उहो अमाउंट जेको डिटरमाइन कंदो कंसर्न मुख़्तियार का डिटरमाइन कंदो। ऐं जेको असां जेका इहा लैंड अक्वायर थींदी उहा बाय कलेक्टर थ्रू थींदी, बाय डीसी थ्रू, डिप्टी कमिश्नर थ्रू। उहा मां नोटिफिकेशन आणंदो त असां फिलहाल लैंड हिन जी अक्वायर कयूं था ऐं उतां लीगल तसरु कयो वेंदो। ऐं हिन जो सर पर्पस इहो आहे त पब्लिक बेनिफिट लाइ जेका बि शइ हूंदी उहा पब्लिक बेनिफिट लाइ हूंदी। समी टॉक इन उर्दू और इंग्लिश। ऐं सर जेका अक्वाइजेशन आहे, अक्वाइजेशन जेका लिमिटेड पर्पस लाइ थी सघे थी या फॉर एवर पर्पस लाइ थी सघे थी सर, उहो डिपेंड करे थो, उहा थी उन ते डिपेंड करे थो केतिरे टाइम हले थी। उहा जेका फॉर स्टॉप थी वञे या ख़तम थी वञे प्रोजेक्ट सॼो, त पोइ उन ते साॻी माण्हू वरी कब्ज़ो करे सघनि था। Okay, brilliant. Anyone else? Anyone else who can define what we have discussed today? Kainat, can you discuss what we have discussed today? सर आपने सेक्शन 22 में बताया था सर आपकी आवाज़ कट गई थी। सर अगर वो बंदा जिसकी प्रॉपर्टी है अपनी लैंड देने से इनकार करती है तो फिर उससे क्या लेंगे? आई एम एबल टू हियर। सर योर माइक इज वर्किंग फाइन to talk, but your voice is not clear till the very starting of the class. आज लेक्चर सही समझ में नहीं आया. Sir again unable. Am I audible to you all now? Hello? आवाज आ रही है? Okay. सेक्शन 22, 23 एंड 24 में हमने ये कहा कि वो कौन कौन से बातें हैं, कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जिनको हम मद्देनजर रख के डिटरमिन करेंगे कि भाई अब इसकी ये अमाउंट है, ये कंपनसेशन इन्हें मिलना चाहिए। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम मद्देनजर रखने के बाद हम डिटरमिन करते हैं द अमाउंट फॉर द कंपनसेशन, वो हम बाद में जाके डिस्कस करेंगे। अनदर थिंग इज दैट कि अगर कोई बंदा लैंड देने से इनकार करे तो हम उनकी लैंड को जबरदस्ती एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि उस बंदे के पास ये अख्तियार सर सॼो मसलो सर तव्हांजी आवाज़ में आहे सर। पोल छा थी सघे थो? Just give me 1 second. I will connect from the mobile phone. Maybe laptop में issue है.